कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय सुभक्तमी श्रील गुरु महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल I welcome all the devotees for today's class. Um, as usual, Bhagavad Gita is um, important for each one of us at all levels. So this chapter particularly, it's the divisions of the faith, right? Hope the 6 shlokas, what I understood, is completed. And in this material world, we perform all our routine activities based on our speculation, whims, and very rarely we consult the scriptures or we read scriptures. Very rarely, few people. But
Krishna is said in this chapter, those who undergo severe austerities and penances not recommended in the scriptures. So maybe in this only the austerities and penances, but in many cases we perform many activities which are not prescribed in the scriptures, and we do them out of pride and ego, only for sense gratification के लिए हमारा ईगो एंड प्राइड का वजह से हम करते हैं सब, which is not prescribed in the scriptures, and just for our to fulfill our lust and attachment we do. अगर किसी को कुछ बांट लिया कहीं पे, maybe at some location, so to an unworthy person, we are just uh, doing charity without proper understanding. Very important is understanding what is my state of mind while doing all this charity, whether मैं मेरा शुद्धता के लिए मैं कर रहा हूं और टू फुलफिल अटैचमेंट लस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा हूं, लोग मेरे को दानी मानेगा, लोग मेरे को रेस्पेक्ट देगा, सम्मान देगा, मान सम्मान देगा, वो सब मन में रख के हम कर रहे हैं या हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट ये, क्या मूड में हम चैरिटी, प्रेयर और ये सब कर रहे हैं. अगर हम ये सब चीज मेरा प्राइड ईगो के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, और कुछ ऐसे करने से ना, ऑस्टेरिटीज करने से, पेनेंसेस करने से वी गेट सम सिद्धि. हम ये सिद्धि के लिए, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं. So persons of normal mental condition must obey scriptural injunctions. देखो इतना प्रभुपाद अपना परपट में इतना सीधा साधा लिखा, इतना सिंपल. नॉर्मल मेंटल कंडीशन, देखिए, must obey scriptural injunctions. So how much Bhagavad Gita is pertinent to us. Okay, so those जो लोग किसी को कंट्रोल करने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपना प्राइड के लिए करते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड डेमॉन्स. सी, हाँ, हिरण्यकशिपु, he performed severe austerity, right? Hundreds, thousands years. So he performed austerity. He prayed Brahma to get to control over this material world, to control over Mrityu, right? So they are all comes under demonic actions. Okay. Now compare to him. Now Dhruv Maharaj. Dhruv Maharaj also did severe penances, austerity. What for? At the end, if you see, even though he initiated to get material benefit, but उनको एक बार भगवान का दर्शन हो गया, he forgot everything and he just asked for भक्ति. बट भगवान ने उनको भक्ति भी दिया, and then he also fulfilled his desires. Okay, so in that sense, whatever we do for sense gratification, such demonstrations are insult to the Supreme Personality of Godhead. आगे चलकर, so in the shloka number 7, it is said, food of 3 kinds. कई लोग पूछते हैं ना हमें कि आप क्यों पैस लहसुन नहीं खाते हो, या मशरूम,
मांस नहीं खाते हो, क्यों नहीं खाते हो, ऐसे पूछते हैं ना, उनके लिए एक अच्छा आंसर ये है। इंडिया में भी एक कहावत है ना, जैसे खाएगा अन्न वैसे बनेगा मन, राइट? फूड इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स। If we eat foods which are in sattvic nature, okay, so मन भी सात्विक रहेगा। कि फूड, सात्विक फूड क्या होता है? जूसी, फैटी, घी, wholesome and pleasing to the heart. All these fruits, vegetables, right? So they all comes under sattvic food. हम why we eat food? हम खाना किस लिए खाते हैं? With grass now, our what we think, हम strength के लिए, to get strength and health, of course, to some extent. This ये तो is main motto of taking food. एक तो बल देने के लिए और हेल्थ, आरोग्य, स्वस्थ, स्वास्थ्य। बट इफ अगर आपने सोचेगा तो we take food to increase the duration of life, not only strength, and major purify one's existence. For mind purification also happens with the type of food we consume. Very important. So just we don't not to take food just for strength and health, but majorly for purification of one's mind also. So the food which helps in increasing duration of life, purification of mind and one's existence, strength, health, happiness, and satisfaction. So, and the person who likes this type of food, so he can be referred as a person in the mood of goodness, sattvic. They are called also sattvic food. And there are food we have also seen, right, which are too hot, too sour, salty, pungent, dry. And there are many people who likes to taste such foods, spicy. So such foods may fulfill, उनको थोड़ा सा शायद अच्छा लगता भी होगा। So those who are in the mode of passion, उनके लिए इस तरह फूड अच्छा लगता है। उनको आप जूस पिलाओ, वो they cannot enjoy, relish, उससे उनको स्वाद नहीं मिलता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो दे दो, वो नहीं खाता। And they like this type of food, pungent, hot, spicy. So these type of food are called food in the mode of passion. And उनका इफेक्ट क्या है? अगर इस तरह फूड हमने हमारा रूटीन में लेके आ गया, it cause diseases, it cause distress, माइंड पीसफुल नहीं रहता है, एंग्जाइटी रहता है, कुछ तरह एंग्जाइटी, and we lose temper very shortly. Misery, it causes misery because these food induce distress and disease. Because of that, we lead into a misery, state of misery. So recent times we come across many diseases which are termed as lifestyle induced disorders. ये लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स इसलिए होता है बिकॉज ऑफ improper food consumption of food, improper selection of food, spicy, ये सब खाने से it causes disease, distress and leading to misery. So these are all food of passion. जो आदमी
मोड ऑफ पैशन में रहते हैं, राजसिक मूड में रहते हैं, उनको ऐसा चीज पसंद होता है। एंड थर्ड कैटेगरी क्या है? फूड ऑफ इग्नोरेंट। जो आदमी इग्नोरेंट में रहता है और डीप डीप इग्नोरेंस में रहता है, वो उनको ऐसे वाला खाना, मांस, देन इंटॉक्सिकेंट्स, फूड ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स लाइक alcoholic beverages and mans, putrid. So these type of foods are liked by the people who are in the mode of ignorant. And उनको ना सुबह का या कल का जो फूड प्यूट्रिड हो चुका है, उनको कुछ डिफरेंस ही नहीं आता, वो खा लेता है। फूड प्रिपेयर्ड अर्ली ओल्ड, that is tasteless, decomposed and putrid, decomposed, अगर खाना बना के बहुत देर हो गया, वो डिकम्पोज हो जाता है बिकॉज ऑफ द माइक्रोवेल एक्शन, प्यूट्रिड हो जाता है, उसमें सवरनेस आ जाता है। एंड जो रेमनेंट्स होते हैं, जो हाँ हाँ रेमनेंट्स, रेमनेंट्स इन हिंदी क्या बोलते हैं? जूठा जूठा होता है, कोई छोड़ खा के छोड़ दिया, जूठा है। एंड अनटचेबल थिंग्स लाइक एनिमल एनिमल बॉडी फैट्स एंड मांस, इस तरह मीट। सो दे आर ऑल लाइक्ड बाय द पीपल हु आर इन द मोड ऑफ डार्कनेस। जो आदमी तामसिक में रहता है, उनको ऐसे वाला चीज खाने के लिए अच्छा लगता है। और अगर इसको अब ऐसे भी ले सकते हैं, जो आदमी ऐसे वाला खाना पसंद करेगा, उसका मन ऐसे तामसिक मोड में चले जाता है। सो आदमी, आपने पिछले क्लासेस में सुना होगा, जो आदमी सात्विक मूड में रहता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? आदमी जो राजसिक मूड में होता है उसका एक्टिविटीज कैसे होता है, हाल चाल कैसे होता है, दिनचर्या कैसे होता है? आदमी जो इग्नोरेंट में होता है, तामसिक मूड में होता है, उसका हालचाल क्या होता है, दिनचर्या कैसे होता है, वो सब हमने सुना पढ़ा होगा। जो आदमी ऐसे वाला चीज खाएगा, ही विल बी, उनको एक तामसिक तामसिक मूड विल बी मोर प्रिवेलेंट। तो उनको सेल्फ रियलाइजेशन, भक्ति, सत्संग अटेंड करना, सत्संग में बैठना, सुनना, भगवान का प्रेयर करना, ये सब चीजों में उनका मन लगता ही नहीं है, आप जितने भी करो, कुछ भी करो। सो इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्या खाते हैं? हम जो खा रहे हैं, वो वेदर इट इज इन द मोड ऑफ सात्विक, एटलीस्ट जो खाना हम जो खा रहे हैं, वो क्या सात्विक मूड में है या तामसिक मूड में है या इग्नोरेंट में है? फूड ऑफ दैट नेचर, ये a person who is intelligent should know what type of food I am eating. वहां से शुरू होना है, बिकॉज जो हम खा रहे हैं वो हमारा मन के ऊपर असर पड़ता है। तो सोचो, हम क्या खा रहे हैं? आप सुबह क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया? हाँ, इफ यू अगर हमने सात्विक फूड खाते आ रहे हैं, स्लोली 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 ये हमारा मन परिवर्तन होने लगेगा। हमें जो फूड राजसिक मूड में होते हैं, जो फूड इग्नोरेंट में होते हैं, उस खाने को हमें पसंद ही नहीं करेगा, मन ही पसंद नहीं करेगा, ये चीज अच्छा नहीं है, नहीं करना है मेरे, ऐसे लगना शुरू होता है। अगर आप ऐसे करते करते बाई ग्रेस ऑफ द लॉर्ड आपको प्रसाद में मन लग गया, योर लाइफ इज डन।
सो गुरु महाराज प्रभुपाद का मूड ऐसे ही था, प्रसाद बांटना, प्रसाद बांटना। क्यों प्रसाद बांटना है? अगर जो थोड़ा सा प्रसाद हमने बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस पीपल, भक्त डिवोटी का वजह से हमें थोड़ा सा भगवान का प्रसाद मिल गया, ये प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। हमें प्रसाद खाने के बाद भी हमारा मन नहीं लग रहा है, ऐसे मत सोचो कि हमने प्रसाद खा के आ रहा है क्यों मन नहीं लग रहा है। डोंट थिंक इन दैट वे। इससे पहले का मन का बारे में सोचो, हम पहले कैसे थे, प्रसाद हमसे पहले कैसे थे, प्रसाद हम खाने के बाद अभी हमारा मन कैसे है। ये प्रसादम का ही एक एक स्टोरी है, हमने भी सुना होगा। गुरु महाराज कभी कभी या बहुत टाइम इनको इसको बोलते रहते हैं। तो हाँ, नारद जी का कहानी है, मैं शॉर्टली बता देता हूँ। नारद जी एक बार हाँ, भगवान धाम जाके वहाँ हाँ, भगवान का प्रसाद मिल जाता है नारद जी को। लक्ष्मी जी ने उसमें मदद करते, नारायण का प्रसाद दे देते। तो नारद जी उसको प्रसाद लेके इतना एक्सटेसी में हो जाता है। ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, एक्सटेसी मूड में, पूरा नाच के भगवान का कीर्तन करके, पूरा हवा में। तो नाच के वो कीर्तन करके आते रहते हैं। आते 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 उनको पता ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा हूँ। तो वही कैलाश पहुंच जाते। तो शिव जी को नारद जी को देखे इतना, ये क्या नारद जी क्या कर रहे हैं, इतना एक्सेसिव में कैसे पहुंच गया। तो उनको रुकने में शिव जी का हालत खराब हो जाता है। नारद रुको रुको, नारद क्या हो रहे, क्या कर रहे हो आप, कैसे हो गया ऐसे। तो नारद जी बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने वहां गया था, भगवान का प्रसाद मिल गया। शिव जी को ये सुन के, शिव जी को भी इतना बनाते, अरे भगवान का प्रसाद मिल गया। वो बोलते हैं कि देखो हाँ, आई नो नारद जी, मेरे को पता चल गया, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हम साथ साथ भगवान का दर्शन किए हैं, भगवान का कीर्तन किए हैं, सुने हैं, इतना डिस्कशन आप तो आते रहते हैं। तो बीइंग माई गुड फ्रेंड, आई एम श्योर यू बॉट मी समथिंग। मेरे को भी भगवान का प्रसाद लेके आ गया होगा। सो शिव जी भी बहुत खुश हो जाते कि मेरे को भी भगवान का प्रसाद मिल जाएगा। नारद जी बोलता है क्षमा कीजिए, तो मेरे को ऐसे प्रसाद का इससे ऐसे हो गया कि आई रियली फॉरगॉट द होल वर्ल्ड, यूनिवर्स को भूल गया मैं। आई आई एम सॉरी, आई मैं नहीं लेके आए। शिव जी शिव जी फिर बाद में ठीक है देखो, नारद जी कहीं ने कोने में कहीं पे भी कुछ तो बचा होगा देखो करके। तो नारद जी देखते हैं, पूरा हाथ वगैरह देखे, पूरा शोधित करते हैं। वो उंगली का कुछ कोने में एक राइस का, प्रसाद का राइस होता है ना, उसका एक टुकड़ा वो उंगली का बीच में, नेल्स का बीच में फंस गया है। हाँ काफी है, ये काफी है, मेरे को दे दो। तो नारद जी उसको, जो नेल में का बीच में एक राइस का दाने था, उसको शिव जी को दी। शिव जी उसको लिया, और शिव जी इतना आदर से प्रेम से वो प्रसाद पाया। शिव जी आल्सो वाज इन ए ग्रेट एक्सटेसी। आपको पता होगा ना, शिव जी अगर शिव जी को, इफ ही इज इन एंग्री also very very dangerous, if he is happy also dangerous। तो he was so excited, so excited, ecstasy में आ गया
कि शिव जी को पता नहीं, ही इज ऑल्सो doing kirtan, prayer, glorification of the Lord after eating prasad. He was also ecstasy. तो ऐसे ऐसे इतना शिव जी ने डांस करना लग गया कि पार्वती वॉज वेरी फियरफुल। अरे क्या हो गया, स्कैरी। शिव जी अभी तो नाउ इट्स नॉट द टाइम फॉर अनिलेशन, अभी क्या हो गया शिव जी को, ऐसे क्या कर रहे हैं। तो पार्वती मैया ने आके पूछा क्या हो गया, उनको रुका पहले, बहुत कष्ट लेके उठ उनको रोका, फिर पूछा क्या हो गया। तो शिव जी ने बोला ऐसे, नारद जी मेरे को भगवान का प्रसाद दिया। नाउ नाउ इज अ टर्म ऑफ पार्वती मैया, हाँ, आई एम विथ यू, आई नो you have never forgotten me, and I am sure you have reserved something for me. So Narad Shivji, Shivji now he is in conscious now. क्या हो गया करके, तो ही also prayed, नहीं 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 नहीं, इतना ही थोड़ा मिला मेरे को, तो आपके लिए नहीं बचा। सो ऐसे कहानी चलता है कि देन पार्वती मैया बिकम वेरी एंग्री एंड नाउ शी स्टार्टेड प्रेइंग, देखो वहां उन सबको प्रसाद मिल गया, मेरे को प्रसाद नहीं मिला। देन वो कहानी ऐसे लंबा जाता है, देन एंड्स अप विथ पूरी जगन्नाथ, विमल मैया, वो क्या है, हाँ जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ का वो जो अभी प्रसाद बन रहा है वो चलो, तो भगवान आके बोलते ओके आई विल गिव माई प्रसाद। देन माता मैया बोलते हैं कि नहीं नहीं, आई एम दी मदर ऑफ द होल यूनिवर्स, सो सिर्फ मेरे को नहीं, पूरा दुनिया को बांटना है। देन भगवान उनको वरदान देते हैं, चलो जैसे मेरा अगले जन्म में या नेक्स्ट अवतार में मैं अमपुरी में सो अवतरण होगा, वहां फिर तो विमल देवी का रूप में पार्वती मैया आएंगे, तो फिर वहां नाउ पूरा प्रसाद, भगवान का प्रसाद पूरा दुनिया में बांट। तो ये सब चीज सुन के ना, तो ऐसा लगता है कि या प्रसादम का इम्पोर्टेंस। सो एक बार हमें एटलीस्ट प्रसादम का ऊपर हमारा मन लग गया, देन आवर प्यूरिफिकेशन हैपेंस इन ए वेरी फास्टर रेट। वाही हमें ये सब क्लास अटेंड करने में, चैंटिंग करने में, भगवत कथा सुनने में मन नहीं करते, बिकॉज आवर माइंड इज नॉट प्योर and not ready also. So still we have got a lot of impurities, and the material attractions are so huge, so high, they are attracting us because of the impurities of the mind. So purification, mind control is very difficult, right? And it is very easy if at least if we are attracted to prasadam. So that's the very important uh, part of Krishna conscious to distribute prasadam. Prabhupada and even Guru Maharaj, पूरा परंपरा में, even if you see many temples, जगन्नाथ पुरी, मायापुर, वृंदावन, हर जगह पे सो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका वजह से आदमी लोग जो प्रसाद खाते हैं, अभी ना नाउ और लेटर अगले जन्म में, वो प्रसादम का महिमा का वजह से दे बिकम कृष्णा कॉन्शियस। दैट वाज द idea behind it. And many temples, like other temples also, like in Tirupati temple, South Indian temples, Udupi, we have seen. So भगवान का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि people become God conscious, Krishna conscious. The best food is the remnant of what is offered to Supreme Personality of Godhead. So whenever we make prasad, we cook food, offer to Lord, it becomes prasad, because such food is transcendental. So it is beyond our uh,
sensual understanding to know the importance of the prasad. Unimaginable. So more than sattvic, okay, rajasic is better than tamasic food, sattvic is better than rajasic food, prasadam is above all. So कृष्णा बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्याम प्रणश्य. So whatever the food cooked by the devotee and offered to the Lord, so that food Lord offered with love and affection, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, and that food become prasad. And if we take that food, then we will be, when our purification of our existence, purification of mind starts, then chanting करने में, then भगवत कथा सुनने में, क्लास अटेंड करने में मन लगता है. Otherwise, mind will give so many reasons to skip. So, till now we discussed about the type of food. Similarly, sacrifices are also of three kinds. जो आदमी है ना, अगर आदमी सात्विक मूड में रहता है, उसका खाना, उठना, बैठना, सुनना, सो ये सब सात्विक मूड में होता है. अगर जो आदमी राजसिक मूड में है, तमोगुण में है या रजोगुण में है, वो अपना अपना एक काम करता है ना. सो इसमें क्या है, जो आदमी सात्विक गुण में है वो कैसे खाता है, क्या खाता है, क्या काम करता है. सो वी हमें पता होगा कि मैं what type of quality is predominating in me, क्या गुण मेरा अंदर ज्यादा है. ये भी हो सकता है कि अलग अलग प्रोपोर्शन में ऑल द थ्री क्वालिटीज मे बी देयर. रजोगुण भी हो सकता है हमारा अंदर, तमोगुण भी हो सकता है, सात्विक गुण भी हो सकता है. हाँ, ये प्रैक्टिस करके, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करके, प्रसाद लेके, भगवान कथा सुन के, अगर हम हमें प्यूरिफाई होते, ज्यादा ज्यादा हम सात्विक गुण में अपनाए ना, देन भक्ति स्टार्ट्स. we will be ready to receive the Bhagavad Gyan. So, for that we must know what type of quality I am entertaining most of my time. So, पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या, कौन सा मूड, मतलब क्या क्या चीज राजसिक मूड को डेमोन्स्ट्रेट करता है. Sacrifices performed according to directions of scriptures as a matter of duty by those who desire no reward is of nature of goodness. क्या है ये, जो हम पूजा पाठ करते हैं, भगवत धाम यात्रा करते हैं, चैरिटी करते हैं, उस टाइम में हमारा मन में क्या सोच रहे होंगे. हाँ, ये सब करने से मेरे को बढ़िया रिवार्ड मिलेगा, स्वर्गलोक में जा सकता है, और आदमी मेरे को धनी सोचते हैं, मेरे को मान सम्मान देते हैं, अगले जन्म में मेरे को स्वर्ग में हमें आ, जन्म मिलता है, वहां और अच्छा अच्छा खाने को मिलता है. ये अगर इफ यू आर एंटरटेनिंग लाइक दिस, देन मे बी इन द मोड ऑफ पैशन. अगर ये सब नहीं है, सो एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी आई एम डूइंग इट
because this is my responsibility. I am doing this to purify my senses, purify my mind, purify my existence. मेरे को मेरा मन को प्योर करने के लिए मेरे को ये करना है, भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए मेरे को ये करना है. इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस. हम टेम्पल जाते हैं ना, साउथ इंडिया में ये कल्चर है, कोर्स फॉरेन में भी है कई कई बार. तो हम कई टेम्पल जाते हैं, लोग चर्च जाते हैं, क्योंकि मेरे को वहां जाना है टू ऑफर माई रेस्पेक्ट, टू ऑफर फ्लावर्स, मांगने के लिए नहीं. भगवान मेरे को पास करा दो, नौकरी दिला दो, बच्चे अच्छे होने दो. नो. अगर आप इस तरह जा रहे, देन कुड बी इन द मोड ऑफ राजसिक तामसिक मूड हो सकता है. तामसिक में चलो एटलीस्ट राजसिक में ही रहते. अगर हम टू ऑफर रेस्पेक्ट टू द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, गिव मी भक्ति, हेल्प मी इन माई प्यूरिफिकेशन, इस मूड में गया. लॉर्ड, you like, I know you like this fruit, because Lord said ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ले लो, ये फ्रूट भगवान को अच्छा लगेगा, ये फ्रूट, ये खाना भगवान को अच्छा लगेगा. भगवान, सो प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी टू कीप माई माइंड एट योर लोटस फीट. सो इस मूड में गया, देन दैट पर्पस is, that is mode of goodness. Without any material benefit nahi. So worship for economical benefit is recommended, is not recommended in the scriptural injunctions. Scripture में नहीं है. अब आपको ऐसे करने जा रहे हो, then you are not following the scripture, then ये तो demonic nature हो गया. Economic benefit, हम सोच रहे हैं ये इकोनॉमिक बेनिफिट से मेरे को अच्छा होगा. वी आर थिंकिंग, ना भी हो सकता है. ये तो हमने तो कई बार देखा है ना, आजकल तो दुनिया में ऐसे हो रहा है, जिसका पास ज्यादा पैसा है वही लोग सोसाइटी में बाधता ले. सो दे आर डिस्टर्बिंग द सोसाइटी मोर देन द पुअर, एंड दे आर मोर सफरिंग एक्चुअली देखिएगा तो. बिकॉज मनी, वो है ना, एक हमारा 9th चैप्टर में एक श्लोक है, भोगैश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतस, तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधौ न विधीयते. भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा. सो if 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 I am attached more to this material desire, हमारा मन ऐसे इस तरह एंगेज हो गया, सो हमें वी डू नॉट गेट व्यवसायत्मिक बुद्धि, इंटेलिजेंस एंड समाधान, पीस नहीं मिलेगा. दैट इज कॉल्ड किक ऑफ जॉय. वो भी एक किक है, सो दैट विल नॉट गिव पीस, हैप्पीनेस. सो क्या करना है हमें? वन शुड गो टू टेम्पल सिंपली टू ऑफर रेस्पेक्ट टू द डीटी. That will purify our mind and heart and uplift for the into the mode of goodness and Shuddha Tattva. So bhakti mein, it will help us to uh, acquire bhakti. और लोग sacrifice passion, ignorant में लोग होते हैं, वो they do so many things which are not really prescribed in the scriptures, but the scientific sacrifice performed for some material benefit, ऐसा material benefit के लिए, for the sake of pride. So कृष्ण बोल रहा है, ओ चीफ ऑफ भरता, जो कुछ भी ऐसे करेगा, you should know to be in the mode of passion. वो सब पैशन में होते हैं कि मैं
10 जानवर काटेगा, भगवान मैं आपको 10 बकरी चढ़ा दूंगा, सब मोड ऑफ पैशन होता है। Any sacrifice performed without regard for the directions of the scriptures, अगर स्क्रिप्चर में नहीं है, without distribution of prasadam, without chanting the Vedic hymns and remuneration to the priest, and without faith is considered to be in the mode of ignorance. A sub in the mode of passion and ignorance, and it will push us down. So गुरु महाराज बोलते हैं, जो आदमी ऐसे जानवर को काटता है, अगले जन्म में उनको वो जन्म लेना ही पड़ेगा, उस योनि में जन्म लेना ही पड़ेगा। देर इज नो एस्केप, नो एस्केप। तो उस जन्म में ऐसे भी हो सकता है, जो जानवर को हमने काटा है वो जानवर हमें उसी तरह हमें भी पनिशमेंट ले सकते हो सकता है। सो दिस इज ऑल लॉ ऑफ कर्मा। सो अगर आपने कर्मयोग पढ़ा है तो उसमें 3rd चैप्टर में लिखा है कि दिस आर ऑल लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा रिपीट्स। जो हमने किया है, सो सेम पनिशमेंट, सेम सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, एक सिवियरिटी ऑफ पेन हमें भोगना ही पड़ेगा। सो penances and austerities. So then what type of penances and austerities that we can do which will help us in our upliftment into bhakti? Austerities of the body. Austerities of the body, Krishna it is said in this chapter. So क्या क्या austerities हमने करना है? Worship of the Supreme Lord, a type of austerity. Worshipping the Brahmanas, worshipping spiritual master, worshipping superiors like father and mother. This is all a type of austerities of the body. ऐसे नहीं कि आपको हठ योग करना है, ओ आग के ऊपर बैठ के करना है, या पूरा उपवास रह के करना है, बॉडी को पूरा पेन दे के करना है। नहीं, देयर इज नॉट austerities ऑफ द बॉडी। तपस्या क्या है? हम तपस्या में, if we are worshipping the Supreme Lord, worshipping right Brahmana, Supreme Spiritual Master, if you are taking pain, interest in worshipping these superiors like father and mother, Krishna said that is a type of austerity, tapasya. और भी austerities of the body क्या है? Keeping cleanliness, internal and external cleanliness. So Prabhupada has written in the purport, external cleanliness and internal cleanliness का बारे में लिखा है. So you must read. Simplicity, be simple, non-violence, not hurting physically, mentally, verbally anybody, and celibacy, controlling the mind, controlling sex indulgence. So ये सब चीज it will comes under the tapasya, and we must do all these things as a tapasya to inculcate in our daily routine. They are all called austerities. And there are 3 types of austerities: austerities of the body, austerity of the speech. Austerity of the speech तो आपने सुना ही नहीं ना। ऑस्टेरिटी स्पीच का भी ऑस्टेरिटीज क्या हो सकता है? तपस्या, वाक तपस्या क्या है? ट्रूथफुलनेस,
सो हाँ, मॉडल इज नॉट टू लाई एंड स्पीक ट्रूथ एंड स्पीक प्लीजिंग. प्लीजिंग मीन्स, हाँ, परपट में लिखा है प्रभुपाद, it is something like glorification of the Lord, speaking stories of the Lord. And भगवान कथा, so maybe we are in the mode of passion and ignorance, भगवत कथा पसंद नहीं होगा, बट भगवत कथा में हमें इंटरेस्ट आ गया, that is highly pleasing, highly pleasing. Speaking which is beneficial. So whenever we are supposed to speak, let us speak about the glorification of the Lord and quote from the scriptures. जो हम बात कर रहे हैं, हाँ देखो, मैंने इस चैप्टर में भगवान ऐसे बोला है, दैट इज वेरी प्लीजिंग एंड श्रद्धा है उसमें. जैसे ये 9th चैप्टर का एक श्लोक बोला, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम दया चेतसा, भगवान ने बोला है ऐसे, जो आदमी का मन too much engaged in sense gratification and opulence, उनको he cannot perform any of these things. उनका, हाँ, व्यवसायत्मिक बुद्धि, समाधो, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस वो नहीं मिलेगा, ऐसे बोला है भगवान. सो if we can able to quote, relate like this, it is very pleasing and it is beneficial to the listener. So हमारा speech should be soothing, not agitating. हम जब बात करते हैं तो being a devotee, being a gentleman, the speech should not agitate the mind of other. Rather, its speech should be soothing. And regularly reciting Vedic literature. जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसको याद रख के उसको चैंटिंग करने से हमारा वाक शुद्धि, ऑस्टेरिटी ऑफ द स्पीच, भगवान को भी खुश होगा ना. अच्छा हो गया, इसको मैंने वाक स्वतंत्र दिया और पावर ऑफ स्पीच मैंने उनको दिया, एंड बिकॉज बाय ही इज वेरी सिस्टमैटिकली एंड जुडिशियसली यूज कर रहे हैं उसको. सो चैंटिंग वैदिक लिटरेचर एटलीस्ट, लाइक हमने ब्रह्म संहिता याद किया, हमने मंगलारती याद किया, उसको जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, उस टाइम बोलते रहना, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिराधिर गोविंद सर्व कारण कारण, ऐसे कुछ बोलते रहेंगे. ये कुछ भगवद गीता का श्लोक याद कर दिया तो, हाँ, so there are many shloka, right, in Bhagavad Gita, which is find very important, like on our soul. Nainam chindanti shastrani, nayanam dati pavakana, chainam kledayanti apo nasoshayati marta. So that gives boost. I am of that quality. Nobody can kill me. Nobody, no astra, shastra, जो material nature बनाया है. So no, nothing, even fire cannot burn me. That gives a lot of boosting. I am of that nature. कृष्ण बोला है ना, अभी कुछ आधार था 15th chapter 7th श्लोका में कृष्ण बोल रहे हैं, all these living entity, living, all the living entities are my part and parcel. ये अभी याद आ गया ना, इसको इतना अच्छा लगता है कि आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सुप्रीम.
So it prevents me, ये रोकता है हमें गलती करने से रोकता है इसको. आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आई शुड नॉट डू दिस. बीइंग ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आई शुड नॉट इंडल्ज इन दीज बैड एक्टिविटीज. ऐसे हमें रोकता है वो. सो ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, या भगवत ब्रह्म संहिता, ग्लोरिफिकेशन करते रहो. हाँ, दैट गिव्स एक्चुअली मान सम्मान. भगवान ने हमें ये दिया, एंड यूजिंग दैट पावर ऑफ स्पीच, so I am doing something which is pleasing to the Lord. Okay, I think we are getting late, so I'll stop here. Austerities of the mind is also one important that we'll take up in the next class. So we'll keep listening, keep discussing on these activities, Lord's activities, and these parts of the bhakti. Hare Krishna.